You listening to me? Dr. Ikra? Yes, I can Yes. listen you. Can you hear me? Yes. Yes, everyone can hear you. You're welcome to the session. Thank you so much. Good morning to We are all of looking you. forward to group discussion and we would like you to begin with. Okay, good morning to all of you. I hope you all are fine. Shall I begin now? Yes, please begin. Please begin. It's time that we Okay, begin. okay. So yeah, good morning. And today I will be communicating with all of you about women and nutrition. कि कैसे एक women और nutrition एक दूसरे से interlinked है. Okay, so I'm gonna share my slide with you. Just give me a second. डॉक्टर देवेंद्र सिंह सिंधु, आप अपने को म्यूट कीजिए प्लीज. अच्छा, ओके मैम. Are you guys able to see the slide? Please let me know so that I can start. Yes, Ikra, the slides are visible. Not here, ma'am. Thank you. Not here, madam. Yes, it's visible. Can't see the slides. Can't see. I hope it is visible now. Yes. Yes, ma'am. Not Yes, now, madam. please. Can't see. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Visible name. Yes, ma'am. Okay. So I'm starting now. लेक्चर को बाइलिंगुअल करवा दीजिए मैम. जी, मैं पूरी कितना भी हो सकता हिंदी है. इंग्लिश मिक्स करके पढ़ा दीजिए. जी थैंक यू. Okay. So I would like to start with a quote from Harriet Beecher Stowe, जो कि एक फॉरेन ऑथर है, जिन्होंने ये कहा कि a woman's health is her capital, right? So we can also say that in order to be externally healthy, one needs to be internally healthy as well. अगर आप बाहरी तौर से हेल्दी हो तो बहुत ज़रूरी है कि आप अंदरूनी तौर से भी हेल्दी हो. And how is it possible? By keeping your nutrition and your diet in the right form. So I'm gonna come to my next slide, which talks about the current scenario of women's health in India. हमारे देश में विमेन हेल्थ मतलब जो जितनी भी हमारी देश में औरतें हैं उनकी हेल्थ किस तरह से देखी जाती है उसके बारे में हम बात करेंगे. सो वी आर अमंग्स द कंट्रीज विद द हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट. मोर्टेलिटी रेट इज़ द रेट जो कि कितनी तौर पे आपकी जो फीमेल होती हैं वो उनकी रेट डिक्लाइन हो रही है, मतलब कितनी तेज़ी से उनकी डेथ हो रही है. सो हमारी जो कंट्री है वो सबसे हाईएस्ट है मोर्टेलिटी रेट में. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एजुकेशन इन इंडिया, अगर हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं भारत में, सो इट इज़ अ नोन फैक्ट that rural areas are still home to certain prejudices when it comes to education of a female child. There are lack of schools in the rural setting. Rural areas में schools उतने नहीं हैं जितने होने चाहिए. And we cannot generalize the prejudice against female education only to the rural background. Right? There are social conditions to be blamed for the nutritional deficiencies that women are going through in our country. बहुत सारे ऐसी social conditions हैं जिनके बारे में अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वो nutritional deficiencies से गुजरते हैं. Coming to my next slide, which is a slide 4. I hope आप सबको दिख रही होगी. Okay, so हर साल हम लोग मदर्स डे बनाते हैं, हम लोग विमेंस डे बनाते हैं टू शो आवर लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द वुमेन इन आवर कंट्री. राइट? ऑब्वियसली दिस इज़ अ वेरी गुड साइन, बट दैट्स ओनली वन साइड ऑफ द स्टोरी. ये सिर्फ एक पहलू है हमारी स्टोरी का, हम इसके आगे नहीं देख पाते हैं. वी जस्ट सेलिब्रेट ऑल दीज डेज. इवन टुडे देयर इज़ अ मेजर चंक ऑफ विमेन इन इंडिया who are deprived of their basic rights like education. बहुत सी ऐसी औरतें हैं जिनको उनकी बेसिक राइट जैसे कि एजुकेशन हो गया, उनकी अर्ली मैरिज हो जाती है, उनको उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता जितनी उनको रिक्वायरमेंट होती है, एंड दे आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर बेसिक राइट्स.
and are not even allowed to work. बहुत से घरों में आप सबने देखा होगा कि बहुत सी जगहों पे औरतों को, लड़कियों को इतनी आज़ादी नहीं होती कि वो बाहर जाके पढ़ाई कर सकें या अपनी स्टडीज़ को आगे बढ़ा सकें. यूजुअली BA MA के बाद लड़कियों की शादी हो जाती है एंड दे आर forced to do the work home only and they are not allowed to go outside for their work. The picture is same not only in India but in many other developing countries. सिर्फ इंडिया में अगर हम कहें कि सिर्फ इंडिया में ऐसा होता है तो यस, इंडिया में ऐसा होता है, लेकिन टू अ हायर एक्सटेंट बाकी दूसरे जो देश हैं उनमें भी आप इस तरीके की सिनारियोज देख सकते हैं. There are some startling facts about women health in India that can give you a clear idea of how women in India are deprived of their basic rights, needs and their health scenarios. We as a country have one of the highest maternal mortality rates. बहुत सारी ऐसी माएँ हैं जो बच्चों को जन्म देने के बाद ही मर जाती हैं या उसके कुछ टाइम बाद ही मर जाती हैं क्योंकि उनको इतना अच्छा न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरी हो ही नहीं पाती. And when we talk about nutrition, there are various aspects which we need to look as well. And in a country like ours, issues like domestic violence or differential treatments also affect the nutritional health of a woman. And all these factors are related to it, such as अगर हम differential treatment का example लें, तो differential treatment of a girls in terms of feeding practices. अगर आप सबने देखा हो या नहीं भी देखा है तो यूजुअली जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है वो ऐसे होता है कि घर में अगर एक बेटा है और एक बेटी है तो बेटे को हमेशा ज़्यादा खाना दिया जाता है इन कंपैरिजन टू द गर्ल, क्योंकि उसको हमेशा एक प्रेस्टिजियस वे में देखा जाता है. देन ऑल्सो इफ वी हैव टू टॉक अबाउट द डोमेस्टिक वायलेंस, सो अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम ब्यूरो 2000 की रिपोर्ट के हिसाब से डेली 125 केसेस पर डे ऑफ क्राइम आते हैं डोमेस्टिक वायलेंस में. अब आप खुद सोच सकते हैं कि जिस घर के अंदर एक औरत की उतनी वैल्यू नहीं होती और रोज़ उसके साथ अगर मारपीट हो रही है तो हाउ वुड बी शी एबल टू यूज़ दैट फिनोमेना कि वो किस तरीके से न्यूट्रिशन को पूरा करेगी जब वो अपनी हेल्थ को ही पूरा नहीं कर पाती है. After that, we will be coming to our next slide. So there is a survey which is called as a National Family Health Survey. ये एक सर्वे होता है जो हर साल होता है. होपफुली आप सबने अगर देखा होगा, आपके घरों में भी हुआ होगा. ये आपके घर में हर चीज़ से रिलेटेड होता है कि किस तरीके का आपका खान पान है, कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, आपका डाइटरी पैटर्न क्या है और कितने आपके बच्चे हैं. ऑल दीज थिंग्स आर combined in this national survey. So there was a survey that occurred and we can find out about the prevalence of anemia among the women. Anemia एक बीमारी है जब आपकी बॉडी में आयरन की कमी होने लगती है. So then you start suffering from the anemia, which is a disease that mostly occur in women. And if we talk about improvement, तो आप जैसे कि स्लाइड में अगर देख पा रहे होंगे, so only 2% positive results is evident since 2005. 2005 से लेके आज तक सिर्फ 2% की बढ़ोतरी हुई है इम्प्रूवमेंट में, उसके बाद पूरा डिक्लाइन है. About 40% of women are mildly anemic, 12% are moderately anemic and 1% are severely anemic. There is also variation in anemia by maternity status. 58% of women who are breastfeeding are anemic. यानी कि जो औरतें लैक्टेशन वाले पीरियड में होती हैं आफ्टर द पीरियड ऑफ डिलीवरी, 58% are anemic, whereas 50% of the women who are pregnant they are anemic. So you can imagine कि किस तरह से हमारी देश की औरतें अनीमिया से ग्रस्त हैं और किस तरह से वो इस चीज़ को आगे भी कंटिन्यू कर रही हैं. There was a study that was conducted in Delhi by a Delhi government. A shocking results came out which said about 60% of female students in Delhi government colleges are anemic. तो आप सोच सकते हो कि जहाँ पे 60% फीमेल स्टूडेंट्स जो हैं दिल्ली जैसे एक बहुत ही प्रेस्टिजियस और बड़े शहर में वो अनीमिक हैं, तो किस तरह से उनके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी होती है. This issue of anemia seems to be breaking boundary of class and society when it comes to its widespread prevalence. There has been a systematic neglect towards women's health in most of the developing or underdeveloped countries, and this is evident in India as well.
अगर हम इस इशू की बात करें तो जेंडर इनइक्वालिटी जो है वो एक बहुत बड़ा, एक बहुत मेन रीज़न है किस तरह इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए, स्पेशली द अनीमिया. एंड देर आर ऑल्सो अदर फैक्टर्स जिसमें आपका माल नरिशमेंट आ जाता है. माल नरिशमेंट इज अ कंडीशन इन विच योर बॉडी डिप्राइव्ड द बेसिक न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू कैरी ऑन योर हेल्थ. जैसे कि आपके बेसिक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जो आपकी बॉडी को ज़रूरी होते हैं, वो नहीं मिल पाते हैं और उसकी वजह से आप माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हो. हैविंग सेड दैट, द करंट सिचुएशन कैन बी certainly worked upon, improved and brought under control. इस सिचुएशन को हम कंट्रोल में भी ला सकते हैं अगर हम नई पॉलिसीज़ बना सकें या हम कुछ ऐसी रिसर्च कर सकें जो हमारे गवर्नमेंट को काम आ सके या हम अपने हेल्थ केयर सिस्टम को इतना अच्छा बना सकें कि उसकी एक्सेस हर विमेन को मिल सके विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. देयर इज अ सेइंग, एक कहावत है जो आप सबने सुनी होगी मोस्टली, और अगर नहीं सुनी होगी तो अब आप सुन सकते हैं कि व्हेन यू एजुकेट अ बॉय यू एजुकेट एन इंडिविजुअल, बट व्हेन यू एजुकेट अ गर्ल यू एजुकेट अ फैमिली. जब आप एक लड़के को पढ़ाते हैं तो आप एक इंसान को पढ़ा रहे हो, एक अकेले इंसान को पढ़ा रहे हो, लेकिन जब आप एक लड़की को पढ़ाते हैं तो आप पूरी फैमिली को पढ़ाते हैं. ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन यू विल एजुकेट अ गर्ल, जितनी नॉलेज उसके पास होगी वो उसको ट्रांसफ़र करेगी अपने बच्चों में, अपनी फैमिली में. बिकॉज यूजुअली इंडिया के अंदर जब शादी हो जाती है सो अ गर्ल बिकम्स द मेन फोकस के वो अपनी हेल्थ को और अपनी सारी चीज़ों को अलग करके अपने दूसरे लोगों के लिए शी स्टार्ट्स वर्किंग फॉर देयर हेल्थ, फॉर देयर फीडिंग प्रैक्टिसेस एंड फॉर एवरीथिंग फॉर देम. शी डजंट पे अटेंशन टू हर सेल्फ. Right? So it is like empowering women through education, thus helping them empower themselves and in an indirect sense even the whole family. Right? Coming to our next slide, which talks about the factors that affect the nutritional status of a woman. Before talking about the factors, हम factors से पहले एक इस बारे में बात करेंगे कि how nutrition अफेक्ट्स द विमेंस हेल्थ. न्यूट्रिशन और विमेंस हेल्थ कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है और कैसे एक दूसरे को अफेक्ट करती है. विमेन आर मोर लाइकली टू सफ़र फ्रॉम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज देन मैन. जो औरतें होती हैं उनके अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आदमियों के मुताबिक कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है. इसका रीज़न है, बहुत सारे रीज़न्स हैं, पर कुछ मेन रीज़न्स हैं वो ये हैं कि जैसे कि जो विमेंस की रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी होती है, उनका लो सोशल स्टेटस, क्योंकि उन्हें सोशली उतना एक्सेप्ट नहीं किया जाता जितना मैन को ऑब्वियसली किया जाता है हमारी सोसाइटी में. पॉवर्टी इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न कि उनके पास इतने पैसे ही नहीं होते कि वो अपने लिए न्यूट्रिशन को हाई कर सकें या उतनी चीज़ें ले सकें जितनी रिक्वायरमेंट है. एंड लैक ऑफ एजुकेशन ऑफ कोर्स, जब आपको पता ही नहीं होगा कि आपको कौन सी चीज़ कैसे करनी है या आपके पास उतनी नॉलेज नहीं होगी कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत, तो ऑब्वियसली वो एक एडवर्स इफेक्ट करेगा. अडोलेसेंट गर्ल्स की अगर हम बात करें, अडोलेसेंट इज़ अ स्टेज जो 13 to 19 के पीरियड में आता है, उसका लाइफ स्पेन ये होता है. और अडोलेसेंट गर्ल्स जो होती हैं दे आर मोर वल्नरेबल टू माल न्यूट्रिशन. इनको ये ज़्यादा प्रोन होती हैं माल न्यूट्रिशन से क्योंकि दे आर ग्रोइंग एट द फास्टर रेट सिंस द टाइम ऑफ देयर बर्थ. तो सिंस द टाइम ऑफ द बर्थ, इन्फेंसी से जो नेक्स्ट पीरियड होता है जिसमें आपकी बॉडी सबसे ज़्यादा ग्रो करती है और जिससे सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, वो आपका अडोलेसेंस होता है. इसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है. और पर्टिकुलरली अगर हम किसी न्यूट्रिएंट की बात कर रहे हैं, सो दैट इज़ प्रोटीन, आयरन and other micronutrients, and the main reason is because the girls goes in the menstruation cycle. So obviously जब ये menstruation पीरियड शुरू होने वाला होता है तो आयरन और प्रोटीन इनकी ज़रूरत पड़ती है. कैन यू प्लीज स्विच ऑफ योर माइक, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है. Okay, so I'm continuing now.
मोस्ट ऑफ द विमेन या मोस्ट ऑफ द गर्ल्स जिनकी अर्ली चाइल्ड मैरिज हो जाती है, आप सबने सुना ही होगा इस बारे में, बाल विवाह जो इस टाइम पे पहले ज़माने में होता था, अब शायद तो उतना नहीं होता जितना पहले होता था. तो ऑब्वियसली दे वर मैरिड एट द एज ऑफ 13 एंड 14, 15 लाइक इन दिस पीरियड. और ये एक ऐसे पीरियड होता है जब आपकी बॉडी ग्रो कर रही है, उतनी बॉडी की, उसके ऑर्गन्स की, हार्मोन्स की उतनी ग्रोथ नहीं हुई है जितनी एक मेच्योर विमेन की होनी चाहिए व्हेन शी इज गिविंग अ बर्थ टू अ चाइल्ड. सो ऑब्वियसली व्हेन अ एडोलेसेंट गर्ल बिकम प्रेग्नेंट तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लेबर पेन हो जाता है और बहुत ज़्यादा दूसरी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं जैसे कि लो बर्थ वेट बेबीज़ पैदा होते हैं जिनमें से मोस्टली की डेथ एट द टाइम ऑफ द बर्थ हो जाती है. सो दैट्स वाई न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको अपने मैच्योर होने तक कम से कम इतना लीजिए कि आपकी बॉडी आने वाले फेस को, आने वाले चेंजेस को बेयर कर पाए. Now let's talk about the factors affect the nutritional status of women. यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं, अगर आप ये डायग्राम देख पा रहे होंगे. सो दे आर बेसिकली 7 मेन फैक्टर्स हैं जो कि आपका है हाउस होल्ड इकोनॉमिक स्टेटस, योर एज मीन्स द विमेंस एज, marital status, education status, malnutrition, gender discrimination and maternal mortality. There have been various studies which establishes these factors amongst the prominent ones when it comes to the nutritional status of women. A local study was conducted, आप इस स्लाइड में भी देख पा रहे होंगे. A local study in Ethiopia was conducted जिसने बताया कि 15 से 19 एज ग्रुप की लड़कियां और 45 से 49 एज ग्रुप की जो लड़कियां औरतें थी, they were suffering and they were. Ma'am, sorry to disturb you. Yes. But your screen is not visible. My screen Your is not slides visible. are not visible. Yes. विजिबल है मैम, विजिबल है. ना विजिबल है, विजिबल है, विजिबल है. वो नहीं दिख रही इसमें. विजिबल है ना? एरो दिख रहा है केवल जो ठीक है. आप की तरफ विजिबल है. आप इसका मैसेज कर लीजिए एक बार. We can see ma'am, it's visible. Okay, आप Okay, मैं try. इंटरनेट ऑफ करके उसे दोबारा ज्वाइन करके देखिए, शायद तब विजिबल हो जाए. नहीं मैडम, आप विजिबल है. आप कंटिन्यू करिए क्योंकि इनकी विजुअल नहीं है, तो आप कंटिन्यू करिए, इनकी प्रॉब्लम है. okay ma'am. Okay. Okay, so I'm Now it's okay. okay. Thank you. Okay. So I'm continuing now. Yeah. So we were on the local case study that was conducted in Ethiopia. तो वहाँ हमें ये पता चला कि 15 से 19 साल की जो लड़कियाँ थी और 45 से 49 साल की जो फीमेल्स थी, they were suffering from undernutrition. Education provides liberty to a certain extent, which may or may not enable the women to have greater access to the household resources, which are important to improve their nutritional status. अगर हम हाउस होल्ड इकोनॉमिक्स स्टेटस की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउस होल्ड इकोनॉमिक स्टेटस. सो या वेट अ सेक. यस, हाउस होल्ड इकोनॉमिक स्टेटस इज बेसिकली अ काइंड ऑफ अ स्टेटस के आपके पास कितना रिसोर्सेज हैं. रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो इसमें पैसा भी आ जाता है उसमें, और दूसरी हेल्थ केयर एक्सेस भी आ जाती हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि आपके पास कितने ऐसे रिसोर्सेज हैं कि आप एफिशिएंटली हर रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ कर सको. विच इज़ द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ अ हाउस होल्ड इज़ एन इंडिकेटर ऑफ एक्सेस टू एडिक्वेट फूड सप्लाई. आपके पास कितना फूड सप्लाई है. यूज़ ऑफ हेल्थ सर्विसेज, एक्सेस कितना है आपके पास हेल्थ सर्विसेज का. अवेलेबिलिटी ऑफ इम्प्रूव्ड वाटर रिसोर्सेज. अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आप सब जानते होंगे कि वाटर रिसोर्सेज इतने अच्छे नहीं हैं. वहाँ पे पानी की हर घर में मोस्टली, इवन इन द पॉश एरियाज, आई यूज टू लिव इन मंडी हाउस विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड द पॉश एरिया ऑफ दिल्ली. लेकिन वहाँ पे भी पानी की प्रॉब्लम हमेशा रहती थी एंड इट वॉज ऑलवेज नॉट सो क्लियर. सो इम्प्रूव्ड वाटर रिसोर्सेज कितना है आपके पास. सैनिटेशन फैसिलिटीज़ कितनी है, आप कितना खुद भी इस चीज़ को अप्लाई करते हो, और आपके आसपास की जो जगहें हैं वो कितनी एप्लीकेबल है सैनिटेशन फैसिलिटीज़ के लिए.
सो दीज आर द डिटर्मिनेंट्स, प्राइम डिटर्मिनेंट्स, जो कि एक चाइल्ड और मैटरनल न्यूट्रिशनल स्टेटस को डिनोट करते हैं. So there was a study that was conducted again in Ethiopia, which showed that women from low economic status households were affected consistently by malnutrition. जिन औरतों के पास लो इकोनॉमिक स्टेटस था, जिनके पास उतना पैसा नहीं था या हाईली क्वालिफाइड नहीं थी या उतना पैसा नहीं था उनके पास, दे वर सफरिंग फ्रॉम द माल न्यूट्रिशन. बिकॉज ऑब्वियसली जब आपके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे तो इवेंचुअली यू विल एंटर इन द माल नरिश्ड फेज. देन वी विल कम ऑन द एजुकेशन स्टेटस ऑफ द विमेन. एजुकेशन, जैसे कि हमने ऊपर भी अभी थोड़ी सी बात करी थी और अभी हम थोड़ी सी बात और करेंगे कि विमेन हु इवन रिसीव्ड अ मिनिमल एजुकेशन हैव जनरली more awareness than those who had no education of how to utilize available resources. And this is a fact कि अगर आपको थोड़ा सा भी पता है कि किस चीज़ को किस तरह से हमें यूज़ करना है, कौन सा रिसोर्स हमें इस तरह से यूज़ करना है कि वो पूरी तरह डिप्लीट ना हो और कुछ इतना रह जाए कि आगे भी हमारे काम आ जाए, बजाय इसके कि आपको बिल्कुल ही नहीं पता कि हमें क्या करना है, तो ऑब्वियसली एजुकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एजुकेशन में इनेबल द विमेन टू मेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस. ऑब्वियसली जब एजुकेशन होती है तो जो औरतें होती हैं घर की, वो थोड़ा इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले सकती हैं. टू बी एक्सेप्टेड बाय अदर्स हाउस होल्ड मेम्बर्स, दे विल बी एक्सेप्टेड बाय द अदर्स हाउस होल्ड मेम्बर, क्योंकि उनकी अपनी एक सोच होगी, उनका अपना एक ओपिनियन होगा. And they have greater access to the household resources that are important to improve their nutritional status, and they will know कि कौन सा resource हम किस तरह से use करें कि हम अपना nutritional status को ठीक कर सकते हैं. So again there was a comparative study, there was a case study that was conducted in the sub-Saharan African countries and in the Ethiopia. So it showed that the higher the level of the education, the lower the percentage of the undernourished women. मतलब जितना ज़्यादा आपका एजुकेशन लेवल था, जितना एजुकेशन लेवल हाई था, उतना ही कम परसेंटेज उनका अंडर नरिश थे वो लोग. मतलब वो लोग हेल्दी थे और पूरी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट उनकी पूरी हो रही थी. सो वी कैन हैव एन आइडिया कि एजुकेशन किस तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर हम अपने न्यूट्रिशनल स्टेटस की बात कर रहे हैं. एज, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एज, women's age and parity are important factors that affect maternal depletion, especially in high fertility countries. ठीक है, जैसे कि 15 to 19 years of age and 40 to 49 years of age जो होती है, मतलब आपकी बिल्कुल शुरुआत की adolescent age आप ले लीजिए, और लास्ट की 40 to 49 विच इज़ अ मेनोपॉजिक एज जो होती है आपकी, यहाँ पे क्रॉनिक एनर्जी डेफिशिएंसी होती है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ CED इन एब्रीविएशन. सो CED, क्रॉनिक एनर्जी डेफिशिएंसी, एक बीमारी होती है जहाँ पे आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी की कमी होने लगती है और your body is not able to utilize the nutrients and absorb them efficiently. So 15 to 19, why? Because adolescent age है. एडोलेसेंट जब होता है तो बहुत सारे और दूसरे चेंजेस हो रहे होते हैं बॉडी में, आपको एवर्जेंस पैदा हो रहे होते हैं, लाइक्स डिसलाइक्स पैदा हो रहे होते हैं आपकी बॉडी में. कुछ कंडीशंस आती हैं जैसे कि बुलिमिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा, जिनके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे. और 40 to 49 एज होती है जहाँ पे विमेन जो होती है, मोस्ट ऑफ द विमेन आर गोइंग इन अ मेनोपॉज फेज, जहाँ पे जो एक हार्मोन होता है ओएस्ट्रोजन, आप सबने शायद नाम सुना होगा. ये हार्मोन जो होता है रिलीज़ होना कम हो जाता है और इसके कम रिलीज़ होने की वजह से देयर आर मूड स्विंग्स, देयर आर द बॉडी, द ऑर्गन्स आर नॉट एबल टू एब्जॉर्ब द एनर्जी मोर एफिशिएंटली जो पहले हो रही थी, एंड दैट्स वाई यू सफ़र फ्रॉम द क्रॉनिक एनर्जी deficiency. When we are about to talk marital status of the women is associated with household headship and other social economic status of the women that affects their nutritional status. In India, हिंदुस्तान के अंदर, in all the societies, it is not only about कि मुस्लिम्स में ऐसा होता है या हिंदूज़ में ऐसा होता है, क्रिश्चियंस में ऐसा होता है. मोस्टली इन ऑल द सोसाइटीज़ women are not given the complete attention, particularly in terms of health and well-being.
In most of the societies, women are the ones who experience health problems and illness. They are regarded as the most affected groups. अगर आप पुरानी स्टडीज़ को भी उठा के देखोगे तो जितनी भी इलनेसेस होती हैं या अफेक्टेड ग्रुप, वल्नरेबल ग्रुप होते हैं, उनमें सबसे पहले विमेन का नाम आ रहा होता है. ईदर दे आर प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग. बट जो मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप की कैटेगरी में होती हैं वो मोस्टली हमारी विमेन होती हैं. The main causes are they are residing in the conditions of poverty and backwardness and are not aware in terms of taking care of healthcare needs, and they do not have access to healthcare and medical facilities. Besides experiencing health problems and illnesses, they are required to carry out the household responsibilities as well. बहुत ही एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि हम सबके घर में जब भी हम सब साथ रह रहे होते हैं, हमारी माँ को ही हम ले लेते हैं. हमारी मदर जो होती हैं, शी इज़ द मेन हेड ऑफ द हाउस एंड शी इज़ डूइंग ऑल द हाउस चोर्स एंड एवरीथिंग, एंड शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेन काम जो होते हैं हमारे घर के, उनके लिए वो मेन रिस्पॉन्सिबल होती है. बट इवन इफ़ शी गेट्स इल, और अगर उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, बुखार हो गया या कुछ भी ऐसी छोटी मोटी तबीयत ख़राब हो गई, स्टिल शी हैज़ टू डू ऑल द वर्क ऑफ द हाउस बिकॉज शी इज़ द मेन हेड ऑफ द हाउस, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके सर के ऊपर हैं. तो अगर एक बार भी उन्हें बीमारी हो गई और वो घर में थोड़ा सा भी उन्होंने रेस्ट कर लिया तो घर का सारा काम बिगड़ जाता है और हमें उतना एफिशिएंटली चीज़ें नहीं हो पाती जितना पहले हो रही थी. बाय बिकॉज द हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर ऑन द हेड ऑफ द विमेन, जो कि हमारी फैमिली में हमारी माएँ होती हैं, हमारी बहनें होती हैं, और अदर मेम्बर्स ऑफ द फैमिली. Women need to ensure that food is provided to their family member first and then they satisfy their needs if any of it is left. Mostly बहुत सारे ऐसे, खैर पता नहीं अब ऐसा होता है या नहीं, लेकिन मोस्टली घरों में ऐसा होता होगा कि जो औरतें होती हैं पहले वो अपने घर के सारे लोगों को खाना परोसती हैं, उन्हें देती हैं, और उसके बाद फिर वो लास्ट में बैठ के खाना खाती हैं. In order to maintain one's health and take care of diet and nutrition, it is vital for not only women but also for men to generate awareness and possess adequate knowledge. सिर्फ एक औरत का एजुकेटेड होना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि एक औरत कितनी एजुकेटेड है, कि उसे कितना न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है या उसे कितनी अवेयरनेस की ज़रूरत है. सिमिलरली एक मर्द का एजुकेटेड होना भी ज़रूरी है कि क्या अवेयरनेस होनी चाहिए, आप दोनों किस तरह से एक दूसरे को सहारा बन सकते हो और किस तरह से आप एक दूसरे की ही न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर सकते हो एक दूसरे का साथ देते हुए. The major factors that need to be taken into the consideration are obtaining adequate diet. आप एक पूरी अच्छी adequate diet लीजिए जिसमें सारे आपके nutrients होते हैं. Getting engaged in physical activities. Mostly people आज का lifestyle ऐसा हो गया है कि physical activities उतनी नहीं होती हैं जितनी होनी चाहिए. तो आप physical activities में जितना ज़्यादा indulge हो सकते हो आप उतना ज़्यादा हो. Doing well in one's job and activities, maintaining good terms and relationships with others, and establish the positive thinking. Okay, so we will come to the gender discrimination. Gender discrimination जैसे अभी हमने ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कस किया था इसके बारे में, जो कि एक one of the most important aspect है जो कि impose करता है detrimental effects upon the lives of girls and women. Preference for sons by the individuals, high dowry cost involved in the arrangement of marriage of girls, and when their upbringing demands resources are some of the factors that causes abuse and mistreatment of girls. Prevalence of girls' gender discrimination is regarded as one of the major factors that causes the health problems and malnutrition among the girls. जब आपके घर में एक लड़का पैदा होता है तो मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, और वहीं जहाँ एक लड़की पैदा होती है तो उनके कत्ल कर दिए जाते हैं, विच इज़ आई थिंक अब उतना नहीं होता होगा क्योंकि अब लोग ज़्यादा एजुकेटेड हैं. लेकिन अगर हम रूरल बैकग्राउंड में देखें तो रूरल बैकग्राउंड में आज भी ऐसी चीज़ें होती हैं. दे आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ and manual jobs, and their diet and nutrition is not adequately taken care of. सारी घर की जिम्मेदारियाँ जो होती हैं मोस्टली लड़कियों पे होती हैं, घर की बहनों पे, माँओं पे, और इस वजह से सारी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते उन्हें इतना टाइम नहीं मिल पाता कि वो खुद की न्यूट्रिशन की टेक केयर ऑफ कर सकें. Women's disproportionate levels of poverty, low socio-economic status,
gender discrimination and reproductive role not only expose them to various disease and health problems, but they also experience problems in accessing to and making the use of health services, जैसा कि हमने अभी ऊपर डिस्कस किया। माल न्यूट्रिशन जो है, जो हमने अभी जब डिस्कस किया था, तो हम सबको पता है कि माल न्यूट्रिशन एक ऐसी बीमारी है जहाँ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगती है आपकी बॉडी में। When individuals are unable to obtain proper nutrients, जब आपकी बॉडी में proper nutrients नहीं आ पाते हैं, then they are stated to be malnourished, and this problem is common amongst the women and adolescent girls to the major extent। अगर हम comparatively इस चीज़ को देखें तो women और आपकी जो adolescent girls होती हैं, इनके अंदर ये condition higher extent के ऊपर बहुत ज़्यादा है। Thus obtaining a proper nutrition is stated as important in maintaining health and well-being of the individual। अगर हम एक एग्जाम्पल लें कि when a child is born to a malnourished woman, आप सोचिए कि अगर एक औरत है जो पहले से ही malnourished है और and she becomes pregnant, और जब वो बच्चा उसके पैदा होगा तो कितनी मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस होंगी उस बच्चे को। सो दैट बच्चा सफ़र्स फ्रॉम द वेरियस मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूडिंग द कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट एक कंडीशन है जहाँ पे दिमाग जिस तरीके से काम करना चाहिए उस तरीके से काम नहीं कर पाता है। सो देयर आर सम डिसफंक्शंस दैट अकर्स इन योर कॉग्निशन, सो दैट इज़ अ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। लो रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शंस, आपकी बॉडी में उतना रेजिस्टेंट नहीं रह पाता है कि वो इन्फेक्शन से लड़ पाए। हायर रिस्क ऑफ डिजीज़ एंड मोर्टेलिटी थ्रू आउट देयर लाइफ्स, हायर रिस्क ऑफ डिजीज़ पे रहते हैं ऐसे बच्चे जो माल नरिश्ड माओ से पैदा होते हैं, और हमेशा ज़िंदगी भर उनकी जो लाइफ स्पेन होती है वो कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द दोज बच्चास जो कि एक वेल नरिश्ड माँ से पैदा होते हैं। कमिंग टू अवर मैटरनल मोर्टेलिटी की रेट हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा हाई है, बाकी कंट्रीज़ में भी है लेकिन हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा हाई है। इन इंडिया इट अकाउंट्स फॉर 20% ऑफ मैटरनल डेथ्स, राइट। इन बिटवीन 1992 से 2006 में सबसे ज़्यादा मैटरनल डेथ्स हुई थी, एंड द मेजर कॉज जो है वो यही है, आपका लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, आपके कल्चरल नॉर्म्स हैं कि और लिमिटेड एक्सेस टू द हेल्थ केयर सिस्टम है। Women who have a lower socio-economic status are not educated and not possess adequate awareness in terms of precautions that can be taken care of। जिनके पास obviously पैसा ही नहीं होगा तो वो किस तरह से एजुकेट होंगी और फिर किस तरह से उनको अवेयरनेस होगी कि उन्हें हेल्थ केयर सर्विसेज कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। Therefore, when they are not aware and do not possess sufficient information, then it leads to an increase in the mortality rate among them। So these were all the factors जिनके बारे में हमने डिस्कस किया, these 7 factors that affects the nutritional status of a woman precisely। अगर हम दूसरी स्लाइड पे हम आ रहे हैं, दिस स्लाइड या दिस वन, सो इसमें आप अगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते होगे। सो दीज आर सम एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि डिवाइडेड हैं आपके कि किस तरह से न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो अफेक्ट होता है। सो वी कैन डिवाइड देम एज इमीडिएट कॉज विच वुड इंक्लूड एन नंबर ऑफ डिजीजेस और इनएडिक्वेट डाइटरी इंटेक, जो आप शायद अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। देन देयर आर अंडरलाइंग कॉजेज सच एज inadequate access to food, उतना फूड आप एक्सेस नहीं कर सकते हो, inadequate care for children and women, and insufficient health services with unhealthy environment। All these underlying causes lead to immediate causes, right? So immediate causes क्या हुए आपके, then we have immediate causes जो यहाँ पे आपके दिए हुए हैं। उसके बाद we have certain basic causes as well as which are inadequate education, political and ideological factors and economic structures। So all these external causes, external factors जो हैं ये भी nutritional status को affect करते हैं। Coming to our next slide, slide number, yeah. So we have here some challenges of women in improving health and nutritional status। challenges की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो as we all know that women are always struggling between the different lives of being a mother,
अ वाइफ, अ डॉटर एंड सो ऑन। हर वक्त एक औरत की ज़िंदगी में एक स्ट्रगल ही चलता रहता है। पहले वो एक बेटी होती है, फिर वो एक बीवी बनती है, फिर वो माँ बनती है, और इस तरह से जो उसका स्ट्रगल है वो हमेशा चलता ही रहता है। Thus it becomes very difficult for them to maintain their own health, क्योंकि हमेशा किसी ना किसी फेज़ में, ज़िंदगी के हर फेज़ में कहीं ना कहीं उनके ऊपर किसी ना किसी चीज़ की जिम्मेदारी हमेशा रहती है। दे आर नॉट ऑल बाय themselves कभी भी। So these are also some of the factors about whom we have discussed already. इसमें से कुछ factors ऐसे हैं जिनके बारे में हमने अभी डिस्कस किया है। So I'm not digging into all these challenges, otherwise it will take a lot of time. So let's just take a quick look on few of them. Let me see. Yeah. So talking about the psychological problems, यहाँ पे अगर आप फैक्टर्स पढ़ पा रहे होगे, so these are some factors जैसे कि psychological problems, loneliness, illiteracy and so on. Coming to the psychological problems, women belonging to all age groups, हर age group की जो women होती हैं, they tend to experience psychological problems to a major extent. It's not about women only, men also goes through a psychological problems as well, but because our topic is women, तो वो हम ज़्यादा precise करके बात करेंगे. In some cases, these problems are extreme, whereas in others, they are moderate or sometimes they are low. The psychological problems tends to have a major impact upon the health and well-being of the individual. In most cases, when girls and women experience psychological problem, they tend to skip meals and it has an impact upon their health condition. आप सबने देखा होगा कि जब भी कोई एक टेंशन होती है, कोई मेंटल इलनेस टाइप की कोई चीज़ अगर आपके साथ हो रही होती है, if you are going through a darkest time of your life or a depression or something like that, you lose your appetite and you are not able to eat something, you're not able to focus on food because आपको लगता है कि क्या ही खाना है. So obviously psychological problem एक major reason है आपके nutritional health, आपकी health को affect करने का. Coming to loneliness, loneliness is regarded as a chronic and distressful state which has a severe impact upon the mindsets of the individuals. It is a major challenge which makes the individuals to evade their healthcare and nutritional requirement. कुछ रिसर्च हुई जिसके ज़रिए हमें पता चला कि most of the women who lost their husbands and children as well, they tend to live in the loneliness for the longest period of their life, and usually they go in depression and in the state of sometimes also in the state of a mental illness, और इसकी वजह से उनकी जो न्यूट्रिशनल हेल्थ होती है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती है. पॉवर्टी और बैकवर्डनेस की अगर हम यहाँ पे बात करें, the conditions of poverty and backwardness are regarded as the ones which are responsible to a major extent for the problems related to health and nutrition. When women are residing in the conditions of poverty, then they certainly look for means to alleviate these conditions, especially when they are responsible for the management of household responsibility, child development and taking care of the needs of their family members. ऑब्वियसली पॉवर्टी और बैकवर्डनेस दो एक ऐसी चीज़ें हैं जो इंटर रिलेटेड हैं और ये आपकी न्यूट्रिशनल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, क्योंकि जो लोग जैसे कि आप पिक्चर से भी देख सकते हैं जो रूरल एरियाज़ में रह रहे होते हैं, जिनके पास उतनी एक्सेस नहीं होती है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की, उन्हें पता ही नहीं होता है कि हमें there are primary healthcare facilities as well, there are secondary healthcare facilities as well जहाँ पे वो जा सकते हैं. उनको इतनी ही नॉलेज नहीं होती कि फ्री राशन कार्ड्स होते हैं या उनका फ्री चेकअप्स होता है या रूरल कैंप्स लगते हैं, और वो इन सारी चीज़ों को मिस कर देते हैं एंड दे आर नॉट एबल टू गो टू दोज फैसिलिटीज़ और वो उनका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं. एज अ रिजल्ट ऑफ विच उनकी जो हेल्थ है, उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस है, वो अफेक्ट होता है. Coming to illiteracy is the state when women do not even possess the basic literacy skills of reading, writing or doing maths, which is arithmetic. There is a strong correlation between acquisition of literacy skills and maintenance of health and well-being. Illiteracy यानी कि आप कितने पढ़े लिखे हो, कितने नहीं हो, जैसे कि हमने ऊपर एजुकेशन के बारे में जब हमने बात करी थी, तो ऑब्वियसली इलिटरेसी जो है वो एक बहुत ही मेजर चैलेंज है. अगर कोई एक औरत है जो इलिटरेट है, मोस्टली इन द रूरल एरियाज़, वो किस तरह से अपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करेगी, दैट इज़ अ मेजर चैलेंज फॉर हर, और अपने साथ साथ अपने परिवार वालों का भी, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है.
we can see that the individuals belonging to the tribal communities, जो कि tribal areas में रह रहे होते हैं, tribal communities को belong करते हैं, वो normally अपना इलाज या कोई भी अगर उन्हें ऐसा लगता है कि हमारी body में कोई कमी हो रही है, so they used to take care of themselves by using herbs and medicinal plants that they get from the forest. क्योंकि उनको नहीं पता कि हमें कौन से हॉस्पिटल में जाना है या कौन सी हेल्थ केयर फैसिलिटी हमें लेनी चाहिए, तो वट एवर दैट इज़ अवेलेबल इन द फॉरेस्ट, देयर इज़ मेडिसिनल प्लांट्स एंड हर्ब्स, वो उसी से अपना इलाज कर लेते हैं, उन्हें लगता है कि नाउ दे आर फिट. दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीज़न कि उनको इतनी बीमारी या इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती, बिकॉज दे आर यूजिंग द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स. बट ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे जो चीज़ मायने रखती है वो यही है कि आप किस तरह से अपनी बॉडी का ख्याल रखते हो. लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, कि आपके पास उतना एक्सेस ही नहीं है कि आप हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में जा सकें, या उतनी नॉलेज ही नहीं है, particularly among the tribal communities, those who are residing in the hilly and the mountainous regions, जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, there is a lack of access of health care facilities, क्योंकि वहाँ पे उतनी फैसिलिटीज़ आपको नहीं देखने को मिलेंगी जहाँ पे आपको एक अच्छे बड़े शहर में देखने को मिल सकती हैं. So in most cases there are not even health care centers, वहाँ पे health care centers भी नहीं होते, and individuals are required to travel to the distant places, उन्हें बहुत दूर दूर तक travel करना पड़ता है health care facilities तक पहुँचने के लिए. The individuals mainly belonging to the tribal communities adopt traditional methods to take the care of their health, जो कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था. जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में हम बहुत सारा डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से जेंडर इनइक्वालिटी जो है वो न्यूट्रिशनल स्टेटस को अफेक्ट करती है, कि आपकी जो सन प्रीफरेंस होती है वो किस तरह से गर्ल, एक लड़की की, एक बच्चे की ज़िंदगी को किस तरह से इफ़ेक्ट करती है. When a preference is given to a male children, then family member ensure that their health care and nutritional requirement are adequately taken care of. जैसे कि मैंने बात करी थी कि उनको एक prestigious वे में देखा जाता है और उनकी सारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स और हेल्थ एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रायोरिटी बेसिस पे एक मेल चाइल्ड को मिलती है. कमिंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड विच इज़ न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स इन अडोलेसेंस. अडोलेसेंस हम जल्दी से एक क्विक लुक ले लेते हैं कि अडोलेसेंस होता क्या है. अडोलेसेंस जो है वो एक ट्रांजिशन पीरियड है. आई होप आप सबको भी पता होगा कि एक ट्रांजिशन पीरियड है बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड, जहाँ पे एक बच्चा चाइल्डहुड से निकल के अडल्टहुड की तरफ बढ़ता है, विच इज़ अ एज बिटवीन 10 to 13, विच कैन ऑल्सो एक्सटेंड टू 19 एंड इवन 25, बट दैट अकर्स इन द वेरी एक्सटेंड केसेस, राइट. सो इन दिस फेज न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो होती है बॉडी की वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी बॉडी ग्रो हो रही है और उसको उतने न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है जितनी एक बॉडी को ग्रो होने के लिए चाहिए. Let us understand why nutrition is essential for adolescent girls. Nutrition adolescent girls के लिए क्यों essential है? Any nutritional deficiency experienced during this critical period of life can have an effect on the future health of the individual and their offspring. कोई भी ऐसी nutritional deficiency जो अगर आपको इस period में हो जाए in your adolescent period, तो वो लाइफ टाइम और आगे जाके आपको और आने वाले टाइम में आपके बच्चे को भी नुकसान पहुंचा सकती है. फॉर एग्जाम्पल, फेलियर टू कंज्यूम एन एडिक्वेट डाइट एट दिस टाइम कैन रिजल्ट इन डिलेड सेक्शुअल मैच्योरेशन and delayed or retarded physical growth. The rapid physical changes of adolescence have a direct influence on a person's nutritional needs. Right, and having said that, let us know about some nutritional related problems of adolescence जो होती हैं. जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो न्यूट्रिशनल रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं एडोलेसेंट गर्ल्स की. यहाँ पे बहुत सारी ईटिंग हैबिट्स ऐसी डेवलप हो जाती हैं और बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ आ जाती हैं जो कि इसी पीरियड में डेवलप होती हैं. इफ़ वी हैव टू टॉक अबाउट ओबेसिटी विच इज़ अ डिजीज़ जहाँ पे आपका नॉर्मल BMI जो 18.5 होता है यूजुअली, उससे ज़्यादा अगर हो जाता है, देन यू बिकम ओबीस, एंड दैट ऑल्सो इन द फेजेस, दैट इज़ ओबीस कैटेगरी 1, 2 and 3. So even if you have extended the BMI of 18.5, you enter in the category of obesity. With all over the world, adolescent obesity is on the rise.
ओबेसिटी इज एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ ओबेसिटी रिलेटेड डिजीजेस। तो ओबेसिटी अपने आप में एक इकलौती बीमारी नहीं है, ये बाकी बीमारियों से भी जुड़ी हुई है, जैसे कि सबसे पहले आपकी हार्ट डिसीज आ जाती है एंड देन ऑल्सो योर डायबिटीज़। तब आप सोच सकते हैं कि अगर इतनी कम उम्र में आप इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां डेवलप कर रहे हो तो आगे जाके बॉडी किस हिसाब से इन सारी बीमारियों से लड़ेगी। स्टेइंग एक्टिव एंड अवॉइडिंग शुगरी ड्रिंक्स and fatty snacks food will promote a healthy weight for the adolescent. There are some eating disorders. Eating disorders can be classified into overeating, undereating and eating disorders. कुछ names होते हैं वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी. So they can have a serious health impacts. ये एक ऐसी एज होती है जहाँ पे आपको बच्चों को अपने लुक्स की बहुत टेंशन होती है कि हाउ आई एम लुकिंग और मेरी बॉडी किस तरह से चेंज हो रही है। कुछ लोग अपने चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं एंड दे टेंड टू गेन वेट टू अ रैपिड अमाउंट। वेयर एज देयर आर सम गर्ल्स और सम चिल्ड्रन जो कि वेट को बहुत जल्दी लूज करने लगते हैं एंड दे बिकम माल नरिश्ड। So some adolescents even go to the extent of resorting to self-induced vomiting in an attempt to control their weight. उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं हमारा वजन बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए, so they use to self-induced vomiting ताकि जो भी हमने खाना खाया है वो सब बाहर निकल जाए। There are some terms जो कि eating disorders कहलाए जाते हैं। So the first term is bulimia nervosa. Bulimia nervosa is a condition when you eat too much देन नॉर्मल। अगर आप कोई भी नॉर्मल चीज़ से बहुत ज़्यादा खा रहे हो और खाए जा रहे हो सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज अ बुलिमिया नर्वोसा। द नेक्स्ट कंडीशन इज एनोरेक्सिया नर्वोसा। आपने बहुत बार सुना होगा कि अरे ये लड़की तो एनोरेक्सिक है या इसे तो एनोरेक्सिया हो गया है। सो दैट इज़ अ कंडीशन व्हेन यू ईट टू लिटिल एंड दैट हैपन्स बिकॉज आपको ये डर होता है कि कहीं आप मोटे ना हो जाओ। दिस इज अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बेसिकली। तो जब आप खाना नहीं खा रहे हो तो ऑब्वियसली आप माल नरिश जोन में जा रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी बॉडी ठीक है लेकिन आपकी बॉडी ठीक नहीं होती। देन देयर इज अ कंडीशन विच इज कॉल्ड एज अ बिंज ईटिंग। बहुत कॉमन वर्ड है, आप सबने शायद सुना भी होगा। सो बिंज ईटिंग इज अ कंडीशन व्हेन यू कैन नॉट स्टॉप ईटिंग एट ऑल। यू हैव टू ईट एट एवरी टाइम, एवरी मोमेंट, एवरी डे। लाइक आपको पूरे दिन में हर वक्त कुछ ना कुछ चाहिए खाने को एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच यू एंटर इन द ओबेसिटी फेज और ओबेसिटी से आप और आगे चले जाते हो। एंड द लास्ट कंडीशन विच इज अ पीका, PICA इज एन spelling. So it is a condition when you tend to eat non-eating materials. Non-eating materials में जैसे कि आपकी चौक, डस्ट, पेंसिल, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप खाने की चीज़ों को छोड़ के इन सारी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हो एंड यू ट्राई टू ईट दैम एंड इट सीम्स टू बी वेरी नॉर्मल टू देम टू ईट दोज मटीरियल्स। प्रेग्नेंट अडोलेसेंट्स जो होती हैं, जैसे कि हमने ऊपर बात कर रही थी कि जब अडोलेसेंट फेज होता है तो बॉडी एक ग्रोइंग स्टेज में जा रही है और जब ग्रोइंग स्टेज में जा रही है तो आपकी बॉडी उतनी मैच्योर नहीं हुई है कि आप एक चाइल्ड बेयर कर सको। इवन इफ यू बिकम प्रेग्नेंट एट दैट टाइम, when a teenager becomes pregnant, she needs more nutrients than her non-pregnant colleague to support both her baby and her own continued growth and physical development. तो अगर उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट मेट नहीं होगी तो जो बेबी है उसकी इम्पेयर्ड फीटल ग्रोथ होगी और आगे लो बर्थ वेट और अदर हेल्थ कंसिक्वेंसेस भी हो सकते हैं टू द इन्फेंट। सो दीज वर सम न्यूट्रिशनल रिलेटेड प्रॉब्लम्स फॉर द अडोलेसेंट गर्ल्स। यहाँ पे एक छोटा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जहाँ पे अडोलेसेंस में कुछ मील पैटर्न्स होते हैं जो चेंज होते हैं। मील पैटर्न्स आर चेंज इन सच अ वे दैट अफेक्ट्स द हेल्थ। जैसे कि आप देख सकते हो जो चिल्ड्रन होते हैं दे टेंड टू स्किप द मील, ठीक है, उन्हें कुछ एवर्शंस पैदा हो रहे होते हैं और जिसकी वजह से वो मील्स को स्किप करना शुरू कर देते हैं एंड दे थिंक कि हम सही कर रहे हैं बट यूजुअली दे आर नॉट डूइंग द राइट थिंग। फिर स्नैकिंग के ऊपर दे आ जाते हैं फास्ट फूड्स, अनकन्वेंशनल कंपोजिशन ऑफ द फूड। चिल्ड्रन टेंड टू स्किप द मील्स, टेक द फूड इन द इनकन्वीनियंट कंपोजिशंस। लाइक एक फूड जितना अगर आपको एक सर्विंग लेनी है या 2 सर्विंग लेनी है तो आप 3, 4, 5, 6 सर्विंग ले लोगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कितना ज़्यादा ले लिया है। फिर आप सबने देखा होगा कि इस उम्र के जो बच्चे होते हैं, स्पेशली जो लड़कियां होती हैं, उन्हें फास्ट फूड्स की बहुत क्रेविंग रहती है और इस तरह से उनका मील पैटर्न्स जो है वो चेंज हो जाता है।
Some other consumptions of food items comes into the play which adversely affect the health of the child. जैसे कि alcohol है, आपकी coffee not in that way, but alcohol, smoking and some aversions that develop at this age and this age only. तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं मिलके आपकी बॉडी को adversely affect करती हैं. Coming to our next slide, which is a diagrammatic representation of the external factors. So this figure depicts some external factors affecting the eating behavior and dietary intake of the adolescent especially. So let's talk about them one by one. Firstly, there are individual factors जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, which include cooking skills, food taste, food taboo, state of mind and so on so forth, which you can see on your screen. Then there are societal factors which comprises of influence of peer, which is also called as the peer pressure, कि आप अपने दोस्तों के कहने पे चीज़ें करते हैं and you see that कि अरे यार मेरा वो दोस्त तो ऐसा करता है तो यार मुझे भी ऐसा करना चाहिए. So you come into that pressure of your peer. Then the social support, social norms and belief. जैसे कि सोशल नॉर्म्स ऑफ बिलीफ में एक छोटा सा एग्जांपल है कि मैन रेयरली कुक्स और सपोजिटली अज्यूम दैट दे डोंट हैव टू कुक. ये एक इसको कह सकते हैं कि दिस इज़ ऑल्सो अ स्टीरियोटाइप कि जो कुकिंग है वो सिर्फ फीमेल के लिए ही बनी है और जो मैन है वो कुक नहीं कर सकते. इवन देयर आर सो मेनी मैन आई नो इन माई ओन personal life that they cook really well. So it is not a stereotype, you have to break that. Then we have factors related to campus life. जो बच्चे जो adolescent age में campus life में रह रहे होते हैं in their universities और college going जो होते हैं, where academic activities, routine, residency, campus culture, lifestyle plays a vital role, especially those who are living in the hostels. हॉस्टल में मेस होती है, मेस में आपको कैसा खाना मिल रहा है, कितना अच्छा है कितना ख़राब है, हाइजीनिक कितना है कितना नहीं है, इन सारी चीज़ों पे आपके जो फैक्टर्स हैं वो डिपेंड करते हैं. फिर अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ कुकिंग एंड रिसोर्सेज एंड फैसिलिटीज़ के कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा एक्सेसिबल है आपके लिए, और दूसरा कि उनका फूड प्राइस क्या है. अगर इतना ज़्यादा है कि एक टीनेज बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, से फॉर एग्जांपल प्रोटीन बार्स की अगर हम बात करें, वेरी न्यूट्रिशियस एंड वेरी हेल्दी फॉर एनी अडोलेसेंट चाइल्ड टू टेक, लेकिन वो इतनी महंगी आती है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो उसे अफोर्ड नहीं कर पाते. So when we combine all these external factors, we can get a fair idea about eating behavior and dietary intake of a adolescent girl or a child. Then we will come on adult women, nutritional problems of adult women. Adult एज जो होती है आपकी वो लाई करती है बिटवीन 35 to 45 एज गैप के बीच में. इट इज़ अ एज जहाँ पे मेनोपॉज हो रहा होता है, आप साइकोलॉजिकली और मेच्योरली बहुत डेवलप्ड हो चुकी होती है बॉडी. न्यूट्रिशनल स्टेटस इन द एल्डर एज इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज एनी अदर स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल. इट इज़ नॉट लाइक दैट कि एडोलेसेंट निकल गई तो बस आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कम हो गई. न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट आपकी एज के हर फेज़ के हिसाब से घटती बढ़ती रहती हैं, बट इट डज़ नॉट मीन कि वो एक पर्टिकुलर एज पे आके ख़त्म हो जाती हैं. Some physiological changes that occurs at a part of aging process tend to have a significant impact on the health and nutritional well-being of a mature women. For example, 30% reduction in the atherosclerotic disease. Atherosclerotic disease are the diseases of the heart. जैसे कि blockage in the heart हो गया, if you have a pacemaker in your heart, और other diseases हो जाती हैं, high cholesterol level in your blood. So these were observed among the older women who consume 5 to 10 servings of fruits and vegetables per day as compared to those who consume 2 to 5 servings per day. तो जो औरतें 5 to 10 servings of fruits और vegetables ले रही थी, उनमें 30% of these heart diseases का reduction पाया गया as compared to those who were taking a very little amount, that was 2 to 3 servings per day. Right? So talking about some nutritional problems, यहाँ पे आपको nutritional problems दिख सकती हैं in the adult women. So that is osteoporosis, which is also a very common in the mature women.
It weakens the bones, causing them to be easily fracture after fall. आपकी bone की जो density होती है वो कम हो जाती है. Most of you must be knowing कि बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है आपकी bones में. To help prevent osteoporosis, 1200 mg of calcium daily. 1200 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम आपको रोज़ लेना है अगर आप को चाहते हो कि आपको ओस्टियोपोरोसिस ना हो. और आपको कैसे पता चलेगा कि 1200 mg आप कैल्शियम ले रहे हो? तो देयर आर अवेलेबल प्रिस्क्राइब टैबलेट्स होती हैं कैल्शियम्स की. और अगर आपको सप्लीमेंट्स नहीं लेने हैं तो आप डाइटरी इनटेक से भी ले सकते हैं बाय टेकिंग द मिल्क एंड द अदर कैल्शियम रिच फूड्स. एंड सफिशिएंट विटामिन डी, जो कि आपको 10 mcg which is a unit of this vitamin D आपको लेना होता है. यूजुअली vitamin D can be taken through the sunlight, लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सनलाइट उतनी नहीं मिल पाती है, स्पेशली इन द टाइम ऑफ दिस कोरोना जहाँ आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, सो यू कैन ईट फिश एंड द सी फूड. इसके अंदर भी आपको अच्छे अमाउंट में vitamin D मिल सकता है. यूजुअली व्हाट हैपन्स कि अडल्ट विमेन इस एज तक आते आते अपनी एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी को छोड़ देती हैं. एज अ रिजल्ट ऑफ विच योर बॉडी बिकम्स टू टेंड्स टू बिकम वेरी व्हाट डू आई से वेरी stiff, right? So engaging in weight bearing exercise such as walking, running, tennis and even dancing can also encourage your bone health. The risk of developing osteoporosis increases once a woman has reached menopause. So जो मेन एज ग्रुप है जहाँ पे इस बीमारी के होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं तो वो है menopause. Once your menstrual cycle stops because your estrogen level reduces. If over a long period of time not enough dietary calcium is taken, your bones start to lose the calcium to the body fluids in order to maintain the necessary concentration. और बहुत लॉन्ग टाइम तक अगर आप कैल्शियम नहीं ले रहे हो तो आपकी बॉडी में से जो कैल्शियम का अमाउंट जितना होना चाहिए वो आपकी बॉडी फ्लूइड्स के ज़रिए निकलता जाता है मेंटेन करने के लिए. So that's how osteoporosis takes place. Cancer is one of the main disease that can occur in the adult woman. Research showed that a very nice and very good amount of intake or increasing the intake of nutrients such as vitamin B6, zinc and vitamin E can reduce the risk of getting cancer at this stage. It also suggested that some nutrients such as selenium, which you can easily find in the green leafy vegetables, especially the dark green leafy vegetables, vitamin B6, vitamin B12 and folic acid, can help protect against the kinds of cancer. And all these nutrients you can find in the dark green leafy vegetables और या फिर आपके जो कुछ मीट प्रोडक्ट्स होते हैं एक्सेप्ट द दोज जो आपका चिकन आप ले सकते हो और आप फिश ले सकते हो, एक्सेप्ट बाकी आप नहीं ले सकते, आप अवॉइड करो तो ज़्यादा बेहतर है. Then we come to diabetes, which is a type 2 diabetes. Type 1 diabetes होती है juvenile diabetes जो कि छोटे बच्चों को होती है, और type 2 diabetes होती है adult लोगों के लिए. That's why it is called the type 2 diabetes. The major reason and the factor is the lifestyle and the physical activity, and this also depend upon your फैमिली हिस्ट्री, कि आपकी फैमिली में किसको कितनी डायबिटीज़ थी, दैट ऑल्सो डिपेंड. और अगर आप उसके बावजूद अपना ध्यान नहीं देते हो तो आप मोर प्रोन हो जाते हो डायबिटीज़ को डेवलप करने के लिए, और यू बिकम द वन ऑफ द मेजर रिस्क फैक्टर ऑफ गेटिंग द डायबिटीज़. दस टेकिंग गुड केयर ऑफ डाइट एट दिस एज वुड हेल्प टू प्रिवेंट सच डिजीजेस. वी आर कमिंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. यहाँ पे आपकी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स हैं ओल्डर विमेन में. सो आई हैड डिवाइडेड दीज प्रॉब्लम्स इनटू 3 कैटेगरीज, दैट वाज adolescent, adult and the older women. So we will talk about the nutritional problems in the older women. As people age, their body become weak and less active. All of their energy requirement become less, thus they need to eat less as well. जैसे जैसे बॉडी एज होती जाती है आपकी बॉडी वीक होती जाती है और आपको एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ती है, लेकिन आपकी एनर्जी उतने ही लेवल पे लूज भी होती रहती है. एज अ रिजल्ट ऑफ विच आप खाना बहुत कम कर देते हो. एज देयर डाइजेस्टिव सिस्टम्स वर्किंग एबिलिटी रिड्यूसेस, thus ability of absorbing the nutrient also reduces.
आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उतना इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर रहा होता जितना इफ़ेक्टिवली आपका पहले काम कर रहा था। एसिडिटी बढ़ जाती है, बहुत से लोगों को इसकी प्रॉब्लम भी होगी, और इसकी वजह से एब्जॉर्बिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स जो होता है आपके गट में वो बहुत कम हो जाता है। By the time a person reaches to 60s or even 55 to 60s, they start to suffer from other illnesses as well as such as hypertension, diabetes, osteoporosis and so on। जब तक आप 60 साल की उम्र तक पहुंचते हो, इवन आज तो उम्र का कोई तकाजा ही नहीं है, यू कैन गेट सच डिसीजेज इवन एट योर अर्ली एज एज वेल। तो आप जब तक एज होते हो और आपको ये एक्स्ट्रा बीमारियाँ होती हैं, सो टेकिंग मेडिकेशन ऑफ दोज डिजीजेज विल ऑल्सो अफेक्ट योर न्यूट्रिशनल हेल्थ। हाउ? taking medications may affect the presence of certain nutrients in the gut which may result in the inconvenient situation due to drug nutrient interaction। So drug nutrient interaction is a type of a condition जहाँ पे आप एक particular nutrient लेते हैं, कोई एक आपने कोई भी ऐसी चीज़ ली जिसमें एक particular nutrient है और उसके थोड़े टाइम बाद आप अपनी दवा लेते हो, तो there occur a drug nutrient interaction जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट जो है वो एफिशिएंटली एब्जॉर्ब नहीं हो पाता आपकी बॉडी में और आपको मज़ीद और ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज करता है। सम ऑफ द प्रॉब्लम्स जो है जिसके बारे में अगर हम बात करें ओल्डर एज में जो आती हैं, वो है माल न्यूट्रिशन दैट अकर्स एज दे टेंड टू ईट लेस and they aren't able to absorb the nutrient as well। CVDs which are also called as cardiovascular diseases, आपकी दिल की जो बीमारियाँ होती हैं जितनी भी इसमें आती हैं, ड्यू टू द हाई इनटेक ऑफ अ बैड कोलेस्ट्रॉल, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। डायबिटीज़ होती है, इट डेवलप्स ड्यू टू द इनएप्रोप्रिएट लाइफस्टाइल एंड डाइट। आप उतना फॉलो नहीं कर पाते हो अपने डाइट को और लाइफस्टाइल आपकी बहुत ख़राब होती है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, आपकी बॉडी स्टिफ होती जा रही है और इस तरीके से आप डेवलप करते हो उस डिजीज़ को। एंड देयर ऑल्सो अकर द मेमोरी प्रॉब्लम विच स्टार्ट टू डेवलप ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स सच एज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इन द डाइट। अगर आज आप अपना एक मेडिकल टेस्ट कराओ जिसमें आपके सारे बॉडी फ्लेट्स एंड न्यूट्रिएंट्स की वैल्यूज़ आए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड डी आर सच न्यूट्रिएंट्स जो कि हमेशा लो लेवल पे होते हैं, लेकिन इतने लो लेवल पे होने की वजह से यू स्टार्ट टू सफ़र फ्रॉम द मेमोरी प्रॉब्लम। सो आपको बहुत बार आपने देखा होगा कि आप बहुत सारी चीज़ें भूलने लगते हो, बहुत छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हो, एंड दैट अकर्स बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और इसको हम इतना हल्के में लेते हैं कि हम सोचते ही नहीं हैं कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो यू कैन ऑल्सो टेक इट इन एज अ सप्लीमेंट or you can take it by a diet in your including in your diet by taking the green leafy vegetables and some meat products अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो। डाइटरी चेंजेस कुछ होते हैं जब आप ओल्ड एज के अंदर आते हो, पीपल बिकम लेस एक्टिव, तो ऑब्वियसली दे टेंड टू ईट लेस, और इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो इंक्रीज़ हो जाती हैं, लेकिन आपकी बॉडी उतनी इफ़ेक्टिव नहीं हो पाती सारे न्यूट्रिएंट्स को लेने के लिए। न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। उसके बाद हाउ टू सॉल्व दिस न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, कि आप किस तरीके से इन न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सो द फर्स्ट वन इज सब्सटीट्यूटिंग द शुगर विद स्टीविया। स्टीविया विच इज़, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो स्टीविया, बट हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना हो इसके बारे में। स्टीविया इज़ अ हर्ब जो कि आपको एक पदार्थ है जो कि आपको किसी भी शॉप पे अवेलेबल हो सकता है। दीज आर बेसिकली द मेडिसिनल लीव्स ऑफ अ प्लांट कॉल्ड स्टीविया, जो कि बहुत शुगरी होती है, बट जितनी शुगर आपको नुकसान पहुंचाएगी स्टीविया उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। ये उतना महंगा नहीं होता है, तो आप सब इसको अपने घर में लेके रख सकते हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इसे यूज़ भी करते होंगे। दे आर ईजिली अवेलेबल ऑन द शॉप, आप जाइए और ये आपको पाउडर्ड फॉर्म में दे देते हैं। तो यू कैन सब्सटीट्यूट योर शुगर विद स्टीविया। ड्रिंकिंग द हेल्दी बेवरेजेस जैसे कि कोकोनट वाटर विच इज़ अ वेरी रिच सोर्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। फ्रेश फ्रूट जूसेस आप ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग द रियल फ्रूट जूसेस, और जो बाज़ार में फ्रूट जूसेस मिलते हैं वो कार्बोनेटेड होते हैं, सो प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड दैम। ईटिंग द कैल्शियम रिच फूड्स, आप कैल्शियम रिच सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो और आप कैल्शियम रिच फूड्स भी ले सकते हो, से फॉर एग्जांपल मिल्क, चीज़,
सोय मिल्क, स्पिनच, वेयर एज सोय मिल्क, सोय प्रोटीन और ये सारी चीज़ें होती हैं, ये बहुत ज़्यादा कैल्शियम रिच होती हैं, सो यू कैन ट्राई टू हैव इट। बूस्टिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं आपको बहुत आसानी से फ्रूट्स में मिल सकते हैं, वेजिटेबल्स में मिल सकते हैं, एंड टू बी प्रिसाइज इन फ्रूट्स यू कैन गेट एंटीऑक्सीडेंट्स, हाई अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स इन द बेरीज। I don't know they are available in the market or not, but you can easily get them online. आप online order करके berries, different type of berries जो है उन्हें order कर सकते हो। Eating healthy fats, omega-3 fatty acids. Instead of eating high cholesterol level diet कि आप फास्ट फूड खा रहे हो या फिर पुराना तेल कोई भी तेल यूज़ कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट ट्राई टू यूज़ सच फैट जिसमें omega-3 फैटी एसिड होता है, जो कि आपको ऑलिव ऑयल में मिल सकता है, कोकोनट ऑयल में मिल सकता है। फिश आर अ रिच सोर्स ऑफ omega-3 फैटी एसिड्स, सो एज द प्रॉन्स, नट्स एंड सीड्स एज वेल। सो यू कैन ट्राई टू हैव सच हेल्दी फैट्स जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को ना बढ़ाएं लेकिन फैट की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करते रहें। गेटिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ विटामिन डी, जिसके बारे में हमने ऊपर भी बात करी थी कि आपको सनलाइट से भी विटामिन डी मिल सकता है, एंड ऑल्सो यू कैन गेट इट फ्रॉम इन द डाइट फ्रॉम fishes and prawns and all the type of a seafood, and adding ample amount of fiber in a food which is one of the major nutrient जिसको हम बहुत ज़्यादा हल्के में लेते हैं, जो आपको बहुत आसानी से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स में मिल सकता है, एंड फ्रूट्स टू बी प्रिसाइज जिनमें छिलके होते हैं जिनको आपको काटना नहीं पड़ता, जैसे कि आपके एप्पल हो गए, आपका गुआवा हो गया, and all the hard fruits basically, and the vegetables like your carrots, your cucumber and everything like that, and nuts and beans, and you all must have heard about the fenugreek seed, मेथी दाना। तो जो लोग डायबिटीज़ से गुज़र रहे हैं या जिनको डायबिटीज़ है, सो दे कैन टेक द फेनुग्रीक सीड्स, रात में भिगो के सुबह पानी में डाल के आप इसे खा सकते हो, या आप उसे ऐसे भी रोस्टेड फेनुग्रीक सीड्स खा सकते हो, बिकॉज इट इज़ अ वेरी रिच सोर्स ऑफ अ फाइबर एंड इट हैज़ अ 25 मिलीग्राम ऑफ फाइबर पर डे, जो एक बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, उससे बहुत अच्छा फाइबर आपको मिल सकता है आपकी बॉडी में। सो दीज आर सम सॉल्यूशंस जिसको आप फॉलो करके अपनी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम को कंक्योर कर सकते हो, बट दीज आर नॉट ओनली फॉर द विमेन, मैन कैन ऑल्सो अप्लाई दीज सॉल्यूशंस ताकि आपकी हेल्थ उतनी ही अच्छी रहे जितनी आपके घर की महिलाओं की है। सो नाउ व्हेन वी हैव रीच्ड टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर डिस्कशन, the most important thing to keep in mind is that the need of the hour is to change the mindset that women's health is not important. हमें इस mindset को change करने की बहुत ज़रूरत है कि women की health इतनी मायने नहीं रखती। When we as a country cannot stand united to respect our mothers, sisters, daughters, wives or any female for that matter, how can we focus on something else? It is important to understand that whatever is happening in the society does affect policy making, because there is a typical sort of mindset which enables patriarchy and keeps the women at the receiving end of all the bashing. We can talk like as much as we want to talk about the underlying problems and the possible solutions for the nutritional health of a women, but the real solution would come from within the society, bureaucratic think tank and the administrator of this country. This will only be possible when we change our mindset for women, for women's health, and rather than focusing on vote bank politics, बजाय इसके कि हम ये सोचें कि एक औरत के ऊपर सारी जिम्मेदारी होती है कि वो सबका ख्याल रखे, बेशक रखे, लेकिन हमारे अंदर इतनी इंसानियत होनी चाहिए कि हम ये कहें कि पहले आप अपना ख्याल रखिए, उसके बाद आप आगे पूरी फैमिली चलाइए। So I thank all of you for this wonderful opportunity to let me present and share my views and knowledge with all of you today. I hope आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा, अगर कोई गलती हो गई है तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। Thank you so much. थैंक यू मैम। एक क्वेश्चन। हेलो जी। हेलो मैडम। थैंक यू बहुत अच्छा से सुनता है। एक क्वेश्चन। आई हैव अ क्वेश्चन मैडम। Okay. क्वेश्चन दिस कर रहा है। हेलो। Yes, Can you hear me, madam? I hear you. मैम जैसे आज के दौर में यूरिया, खाद, पेस्टिसाइड इत्यादि बहुत ज्यादा हो चुका है,
तो इसको विटामिन इत्यादि की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन। जी, आप दोबारा से एक बार रिपीट कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को? मैम आजकल जैसे जो खाद्य सामग्री है हमारी बाजार से हम लोग लाते हैं, जी जी तो उसमें अधिकतर बाजार का ही होता है। तो उसमें जैसे आजकल पेस्टिसाइड, यूरिया इत्यादि जो खाद इत्यादि होती हैं, उनसे जो उसकी कैपेसिटी होती है फूड की वो गिर चुकी है। जी तो उसको आज के दौरान फूड को कैसे कंप्लीट करें, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी जी जैसे कि उन्होंने पूछा कि मार्केट में जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं उसमें मोस्टली इस टाइप की चीज़ें होती हैं जिससे हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो पाती हैं। आई होप यही क्वेश्चन है जी। तो जी जी तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग जितना ज़्यादा कोशिश कर सकते हैं बजाय इसके कि हर तरीके का प्रोडक्ट यूज़ करें, ट्राई टू यूज़ द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो आपको मार्केट में बहुत ईजिली मिल जाते हैं। ऑर्गेनिक एक ऐसी चीज़ है जो कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी और आपका न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है वो भी पूरा रखेगी। सो ट्राई टू शिफ्ट टू ऑर्गेनिक इफ पॉसिबल। हेलो मैम, जैसे लोअर एरिया में नहीं मिल पाते तो उसको ऑप्शन क्या निकलेगा? जी Do you think that mindset? I want to ask you things. What do you think about keto diet for women? There is a keto diet for women, and is it necessary to replace stevia, sugar with stevia? You can do without sugar as well if you make it a habit. So see, शुगर और स्टीविया का रिलेशन ऐसा है कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप उसे सब्स्टिट्यूट ही करो, लेकिन क्योंकि शुगर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है आपकी बॉडी में, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसे उतना इफ़ेक्टिवली नहीं कम कर सकते, तो फॉर देम दे कैन यूज़ स्टीविया। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप शुगर को सब्स्टिट्यूट करे बगैर ही उसे इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं कि वो आपकी बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए, तो आई थिंक देयर इज़ नो नीड टू सब्स्टिट्यूशन, बट स्टीविया इज़ Actually, बेटर। या the current generation is sugar addict. यस The whole sugar addicts. We are sugar addicts actually. Can't do without sugar. Yeah, so that's why I mention stevia specifically, क्योंकि एक बार आप शायद खरीद के भी देखना, आपको अंदाजा होगा कि stevia is just like a sugar. Is there any side effect? I mean major side effects of there are stevia? no side effects because it is a herb, और जो herb होती है उसका कोई भी side effect नहीं होता है, तो आप उसे ट्राई कर सकते हैं अगर आपको लगता है आपको करना चाहिए। अदरवाइज इट्स ओके, आप नॉर्मल भी अपना जैसा आप खा रहे हो शुगर आप खा सकते हो। Please give some information about keto diet and its benefit, side effect, and what is, I mean, is it good for women or not? आई वुड रादर से कि कीटो डाइट को एक बहुत बड़ा इशू बना दिया गया है आजकल, कि जिसको देखो डाइटिंग पे सब लोग कीटो डाइट को ही फॉलो करते हैं फॉर लूजिंग देयर वेट एंड एवरीथिंग, लेकिन बॉडी की कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती हैं जो कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सोचें कि आप कार्बोहाइड्रेट को काट के कम्प्लीटली काट के आप सिर्फ प्रोटीन खाते रहोगे तो ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट की तो ज़रूरत है बॉडी में। तो आई वुड से कि कीटो डाइट उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितनी लोगों ने बना रखी है, बट इफ़ यू आर फॉलोइंग इट विद प्रिकॉशंस कि आप हर न्यूट्रिएंट को इंक्लूड कर रहे हो, तो आई थिंक सही है। अगर आपकी बॉडी को फ़ायदा कर रहा है सो यू कैन कंटिन्यू दैट, बट आई वुड नॉट सजेस्ट एनीवन टू स्पेसिफिकली गो ऑन अ कीटो डाइट। Thank you, ma'am. Madam, थैंक्स। do you think that, this is my question, do you think that mindsets, abuse, and the social biases restrict women from getting hygiene and menstrual health care? If so, how can these obstacles be reduced or resolved? Do you think that mindset, abuse, and social biases restrict women from getting hygiene and menstrual health care? If so, how can these obstacles be reduced or resolved? Another thing that I would like to mention is that you have mentioned about administration and bureaucracy. And from that perspective, I would like to tell you that, do you think that administration and bureaucracy, these items or these things are sufficient to reduce or resolve this kind of hindrances regarding hygiene and menstrual health care of women or girls? This is my question, madam. ओके सो जितना भी मुझे थोड़ा बहुत समझ आया कि आपकी बात में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था, बट आई थिंक अगर गवर्नमेंट हमारी इतनी अच्छी पॉलिसीज़ बना सकती है
जहाँ पे औरतों को फ़ायदा हो सके। इन द केस ऑफ न्यूट्रिशन अगर हम बात कर रहे हैं, या हेल्थ और हाइजीन और सैनिटेशन की आप जो बात कर रहे हो, तो आई थिंक बेनिफिट विमेन को सबसे ज़्यादा काउंटर पार्ट्स पे होगा। और आई थिंक गवर्नमेंट पॉलिसीज, ब्यूरोक्रेटिक, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ विमेन स्पेशली, क्योंकि सबसे ज़्यादा विमेन ही वल्नरेबल हो चुकी हैं हमारे कंट्री में, स्पेशली इन द रूरल एरियाज एज वेल। सो या दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। Ma'am, you spoke. Good morning, madam. Ma'am, you spoke about eating disorders. You mentioned pica there. Yes. I just had a question about pica. Is it specific to adults, or can children also? Because they also pick up non-food items very easily. You know, Yes, they pick up anything from the floor and eat it. Yes. So, is it specific to adults, or can children be affected with it? And if children can be affected with it, then what can be done in that regard? ओके, सो बेसिकली पीका इज़ अ कंडीशन जो कि यूजुअली आपके अडोलेसेंट पीरियड में ही होती है, क्योंकि बाय द टाइम व्हेन यू बिकम एन एडल्ट, जब आप 15 और 19 को क्रॉस कर लेते हो, तो आपके अंदर एक सेंस डेवलप हो जाता है कि आपको पता है कि ये चीज़ हमें नहीं खानी है, इसका नुकसान है। सो यूजुअली इट हैपन्स इन दी अडोलेसेंट एज। और वहाँ पे नॉन ईटिंग आइटम्स, जैसे कि मैंने कहा था, चौक वगैरह, घर में भी आपकी इस टाइप की चीज़ें होती हैं ना, चारकोल बहुत अच्छा लगने लगता है, सो डू ट्राई टू ईट दैम। सो आप इसे कैसे रोक सकते हो? आप उन्हें बिठा के समझा सकते हो कि ये नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम उनमें अवर्जन्स पैदा हो रहे हैं, तो उन्हें संभालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आप उन्हें बैठ के अगर समझाएंगे और ट्राई टू हाइड दोज थिंग्स फ्रॉम योर हाउस, आप जितना उन्हें कम कर सकते हैं आप उन्हें कम करिए। और यू कैन ऑल्सो सब्स्टिट्यूट विद, आप उन्हें चॉक के साथ कुछ एक ऐसी चीज़ दे सकते हो कि बेटा ये खा के देखो, ये ज़्यादा हेल्दी है या ज़्यादा टेस्टी है, सो दे माइट लाइक दैम बेटर देन एनीथिंग एल्स व्हिच इज नॉट ईटिंग। Hello, madam. Hello. But actually, there are Pika some itself policies government denotes has made. fundamental deficiency. Sorry, I'm not able Hello. to hear. Please, can you ask one by one so that I can? Yes, madam. Yes, madam. Here, there are so many policies government has proposed related with the women health, madam. Mhm. But women in India are born and brought up in such a way to give more importance to the male society. Because in most of the times, as take for example, कि अगर खाने की पीने की भी बात हो, न्यूट्रिशन की भी बात हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो रेमिनेंट्स रहते हैं कल के या शाम का जो खाना बचा हुआ होता है, तो मोस्ट ऑफ द फैमिलीज टेक दैट पर्टिकुलर फूड। एंड इन आवर एरिया, एटलीस्ट आई डोंट नो अबाउट द इंडिया, बट इन आवर एरिया देयर आर सो मेनी women who are anemic. There is a deficiency of hemoglobin in their blood. So, what women must give preference while giving more importance to the health? They must give more importance to their own health, because they need to feed the child and they need to take care of the whole family. So, what do you think? What women should do in general? Okay, so basically the question is कि फीमेल ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों से इक्विप्ड होती हैं, जिम्मेदारियों से, तो वो किस तरीके से अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दें। आई थिंक दिस इज योर क्वेश्चन। Yes, madam. Yes. या सो जैसे कि हमने यहाँ भी डिस्कस किया, कैन यू प्लीज स्विच ऑफ योर माइक, क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, मुझे सुनाई भी नहीं दे पा रहा है। या सो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि विमेन के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं कि वो अपने घर का भी ख्याल रखें, अपने बच्चों का भी ख्याल रखें, एंड एज ही सेड के वो अनीमिक हैं, तो वो किस तरह से अपने ऊपर ध्यान रख सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप के अंदर अवेयरनेस पैदा होना बहुत ज़रूरी है। अगर हर औरत में ये अवेयरनेस आ जाएगी कि आप पहले अपना ध्यान रखो और उसके बाद आप सामने वाले का ध्यान रखो, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप अपना ध्यान रख पाओगे आप तभी सामने वाले का ध्यान रख पाओगे। सो यू कैन स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक सिंपल स्टेप कि जस्ट प्लान अ डाइट फॉर योर सेल्फ। आप एक अपने लिए डाइट बना लीजिए, आप उसे अपनी फ्रिज पे चिपका लीजिए कहीं किचन में या जहाँ पे भी आपको फीजिबल लगता है, एंड ट्राई टू फॉलो इट ऑन अ डेली बेसिस। तो जब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ आप अपने लिए कुछ कर रहे हो, आप एफिशिएंटली कर पा रहे हो, एंड ऑल्सो यू विल बी एबल टू फॉलो द डाइट, और आप अपनी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को भी उस हिसाब से कंट्रोल कर पाओगे।
So I think awareness and following the steps is the answer. Hello, ma'am. Thank you, madam. Hello. Yes. Hello. Yes. This person is asking that the person who has at the age of Hello, ma'am. hello. Okay. There are too many people asking the same time, so I'm not able. हेलो मैम, Hello. Hello. मैं ये पूछना चाहती हूँ कि डेली जो अपनी डाइट है जी. Hello, ma'am. जी आप पूछिए. Hello, madam. Ma'am, I'm asking first, ma'am. Yeah. I'm asking that the person who are attaining at the age of 30, both male and female, what kind of diet is ideal for them to boost up their immunity power? Who are attaining at the age of 30 and above, male and female both. Okay. So at the age of 30, you have already reached the adult phase. ठीक है. आपने जो पूछा कि कौन सी डाइट उनके लिए सही हो सकती है, तो ये जो चीज़ है ना, ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करती है. कि इट ऑल्सो डिपेंड हो सकता है कि 30 की एज में आप 120 kgs के हों, या ये भी हो सकता है कि 30 की एज में आप 40 kgs के हों. सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन बॉडी टू बॉडी कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है. सो इफ़ यू आर एट अ नॉर्मल BMI, तो आपको इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए यू कैन गो ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स. आप हर्ब्स का स्पेशली यूज़ कर सकते हैं. यू कैन ड्रिंक काढ़ास, दिन में जितना ज़्यादा आप पी सकते हो. कोरोना का टाइम है, सबसे ज़्यादा आपको यही फ़ायदा कर रहा होगा इस टाइम. येस, एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ विटामिन C. विटामिन C स्पेशली इन द टाइम ऑफ कोरोना एज वेल, और नॉर्मली हमारी ज़िंदगी में भी, और इवन एट द एज ऑफ 30 और उसके बाद हमें इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि विटामिन C इज़ द मेन विटामिन जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा के रखता है. तो ट्राई टू टेक सप्लीमेंट्स इफ़ यू आर, मतलब अगर आप ले सकते हो सप्लीमेंट्स. Ma'am, if somebody likes to take the beverage or the liquid food, so what kind of be the best for them? Liquid food or fruit juice in this way? Liquid food or beverage? सो फ्रूट जूसेस मैं आपसे कहूँगी कि बेहतर होगा अगर आप जो बाज़ार में मिलता है कार्बोनेटेड जूसेस, आप उसका अगर अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है. यू कैन डू इज़ जस्ट बाय अ सिंपल फ्रूट्स, जैसे कि आपका पोमीग्रेनेट हो जाता है, और दूसरे जो भी आपको अवेलेबल है मार्केट में विटामिन C रिच फ्रूट्स, जस्ट टेक देम, और आप उनका अपने घर में अपना जूस उन्हीं फ्रूट्स का जूस निकालें, एंड विदाउट एडिंग शुगर, एंड देन यू कैन ड्रिंक इट. It is better than the squash, ready-made squash. I would rather suggest to avoid the ready-made squashes and fruit juices. I would rather suggest to avoid them. Okay, thank you, ma'am. Thank you. Madam, Yes. is there any relation between pica and malfunction of brain? Sorry, can you please repeat? Is there any relation between pica and the malfunction of brain? Okay, I don't. There is not such a relation between pica and the malfunction of a brain. Pica is basically a psychological thing. Pica जो है एक aversion develop करती है इन बच्चे की body में, तो you just tend to start liking the smell of those products, and you just start to liking कि उनका taste कैसा होता है. तो इसका malfunction of brain तो एक बहुत बड़ा term हो जाएगा. सो इसका रिलेशन तो नहीं है, बट या इट इज़ अ साइकोलॉजिकल थिंग, तो आप अपने बच्चों को बहुत आसानी से क्योर कर सकते हो. Okay, thank you. हेलो मैम, हाँ जी, कुछ ऐसी चीजें जो डेली डाइट में यूज की जाती हैं और जिनका न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा हो और थोड़ा कॉस्ट कम हो, जिन्हें लोग रोज यूज करें अपने न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए, थोड़ा वो बता दीजिए मैम. ठीक है. बेसिकली आपको अपनी बॉडी में देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि आपकी बॉडी में हर न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है. तो हम किसी भी एक पर्टिकुलर, जैसे अभी सर ने मुझसे कीटो डाइट का सवाल पूछा था, तो हर न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है. आप पर्टिकुलरली किसी एक को बहुत ज़्यादा और एक को बहुत कम नहीं कर सकते हो. सो ईच न्यूट्रिएंट इज़ रिक्वायर्ड बाय योर बॉडी. बट किस तरह से आप न्यूट्रिएंट को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में, इज़ बाय टेकिंग, आई थिंक द बेस्ट वे इज़ टू टेक द रॉ फ्रूट्स जो आपको मार्केट में मिल जाते हैं. सीजनल फ्रूट्स, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि आप पर्टिकुलरली जाके ही खरीदो.
सीजनल फ्रूट्स आप ले सकते हैं। और इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन देन बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नॉन वेज होने से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स डेवलप होती हैं। सो इफ़ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन यू कैन हैव a bowl of steamed or a boiled vegetable salad, or you can have mixed fruit salad. So these ये बहुत सारे nutrients को combine कर देते हैं, आपका fiber content पूरा करते हैं, आपका protein पूरा करते हैं, आपको antioxidants provide करेंगे. So I think shifting to having a 2 to 3 cups bowl of fruits and vegetables in a form of salad आपको फ़ायदा पहुँचाएगा. Hello. Hello, ma'am. Hello. Being a teacher in rural India, I want to ask you, ma'am, Yes. what kind of program should be arranged in rural area to awaken the women, especially female students? Okay. So what yes. Awakening programs. what kind of a programs should be there in the rural areas कि जिसमें women को okay. Yes. Okay. Yes. So yeah, I would tell you कि मैं खुद से एक member हूँ which was a program of government program था, which was a प्रधानमंत्री I don't know how many of you have heard about it, लेकिन it was a program named प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान. This was the name of the program. So basically in this program क्या होता है कि आप rural areas में जाते हो और free medical camps लगते हैं, and I was a part of it, so I have also gone there. तो आप free medical camps लगते हैं, वहाँ पे उनकी free dietary counseling होती है. Even no matter of the fact if they are pregnant or lactating or normal हैं, उनकी free diet counseling होती है, उनको free substitutes मिलते हैं, उनको free medications मिलती हैं. So I think rural camps हो सकते हैं is one of the major reason कि awareness उनमें बढ़ाई जा सकती है. और so rural camps अभी भी हैं और हम पूरी कोशिश करते हैं कि NGOs के ज़रिए भी जाएं और awareness उनके अंदर create कर सकें. Okay. Thank you, ma'am. Hello, ma'am. I wanted to ask you a question. Yes. Okay, I'm not able to hear anyone. आप प्लीज एक करके पूछिए. बनाने के लिए मातृत्व वाला जो आप बता रही थी, इसके लिए कहाँ अप्लाई किया जा सकता है और किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है कि अपने क्षेत्र में लगवा सके? ठीक है, इसके लिए एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है. जो मातृत्व अभियान है, बेसिकली जब कैंप्स लगते हैं तो इन्फॉर्मेशन या तो उनके पास पहुंच जाती है या कुछ ना कुछ ऐसा अवेयरनेस हो जाती है, उन तक पहुंच जाते हैं, या हम खुद जाके उनको इनवाइट करते हैं. सो देयर इज़ नो एप्लीकेशन, ऐसा कुछ फॉर्मल एप्लीकेशन नहीं है. और जी अपने क्षेत्र में कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने क्षेत्र में करा, आई थिंक ये हर जगह होता है. मुझे अलीगढ़ का आइडिया नहीं है क्योंकि अलीगढ़ में अब तक हुआ है या नहीं, लेकिन यूजुअली हर शहर में हर महीने की 1 से 9 तारीख को ये होता है. थैंक यू. मैम. हेलो मैम. यस यस. हेलो मैम, आप बोल रही थी कि टी में शुगर की जगह स्टीविया का यूज करना बेहतर होगा, लेकिन अगर हम टी में शुगर की जगह जैगरी का यूज करें या फिर किसी में भी जैगरी का यूज करें तो वो कैसा होगा? ये क्या बेनिफिशियल है? ओके, आई थिंक अ वेरी नाइस क्वेश्चन ऑल्सो. जैगरी जो है आपकी बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेटेड चीज़ है. लोगों को ऐसा लगता है कि जैगरी से भी डायबिटीज़ हो सकती है, पर आई थिंक डायबिटीज़ जो है वो आपका शुगर आप कितना खा रहे हो उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. वो आपका अपना लाइफस्टाइल और आपकी फैमिली हिस्ट्री पर ज़्यादा डिपेंडेंट है. So yes, you can substitute sugar with jaggery, but that also in a limited amount, क्योंकि आपको भी शायद पता होगा कि कोई भी चीज़ अमाउंट से ज़्यादा एक्सीड करने पे वो नुकसान ही पहुंचाएगी. तो try to use it in a limited way. मतलब आप अगर शुगर यूज़ कर रहे हो तो आप जैगरी यूज़ कर सकते हो. There is no harmful thing that can happen. ओके मैम, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? स्टीविया अगर मैं सजेस्ट करूँ पार्टिसिपेंट्स कि स्टीविया अगर आप हर्ब पे जाना चाहते हो सो यू कैन हैव स्टीविया, एंड अगर आपको मोर नेचुरल रहना है सो यू कैन हैव जैगरी एज वेल. बट आई वुड रादर सजेस्ट स्टीविया क्योंकि मैंने उसके बेनिफिट्स खुद देखे हैं, तो आई वुड रादर सजेस्ट स्टीविया. बट इट्स अप टू यू, इट्स अप टू योर ओन बॉडी ऑल्सो. ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू. देखिए अब समय समाप्त हो गया है
और इसी के साथ डॉक्टर मीरा, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आपका मुझे लगता है सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा गया। सभी ने आपसे न सिर्फ विमेन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, बल्कि मुझे लगता है अपने न्यूट्रिशन और हेल्थ के लिए भी बहुत से सवाल आपसे किए गए और आपने सबका बहुत बखूबी जवाब दिया जी। थैंक यू सो मच। So I thank you, and being a young professional that you are, we wish you the very best for a very promising career in your professional life as well as your personal life. Thank you. Thank you so much. Thank you We so will much. sign off from here, participants. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Hope to have you back with us. Thank you, Thank you. ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank Okay, so we will meet at 11. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, madam. Thank you very much.